Hello friend, today our lecture number 5, that is the magnetic properties of d block element. Means what are the magnetism shown by d block element, that is the first transition series. So actually there are two types of motion in our atom. This is the nucleus, and around the nucleus there are number of shells are revolved around the nucleus, and this shell contain number of electrons. First shell contain 2 electrons, second shell contain 8 electron, third shell contain 18 electron. Okay, so electron continuously revolve around the nucleus. Suppose this is electron and this electron are continuously revolve around the nucleus, either clockwise or anti-clockwise. And second one, electron also spin around its own axis. Means in an atom there are two types of motion. कितने टाइप की मोशन है? टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कौन सी मोशन है? पहली जो मोशन है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पहली जो मोशन है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी जो मोशन है उसे बोलते हैं स्पिन motion of electrons. Okay, means electrons are continuously revolve around the nucleus, as well as it also spin around its own axis. And when electron revolve around the nucleus, when electron revolves around the nucleus, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ऐसा घूम रहा है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन. Means when electrons are continuously revolve around the nucleus, it is this type of motion, it is called as orbital motion. When electron revolve around the nucleus, ऐसे घूम रहा है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाजू में ऐसे घूम रहा है वो, और वो जो मोशन है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन. और आपको पता है लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलते हैं? थंब रूल क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड थंब रूल, दैट इज एनी चार्ज स्पेसिस, और इलेक्ट्रॉन में क्या है? चार्ज है. एनी चार्ज स्पेसिस रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और व्हेन एनी चार्ज स्पेसिस इन मोशन, it creates its own magnetic field, and perpendicular to that magnetic field there is a formation of electrical field. So when electron revolve around the nucleus, this motion it is called as orbital motion, and during this motion electron possess negative charge, and when charge species revolve around the nucleus, it creates its own magnetic field, and this type of magnetic field it is called as orbital magnetic movement. और जो मैग्नेटिज्म फॉर्म होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट. तो पहली जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो थी ऑर्बिटल, और उससे जो फॉर्म हो रहा है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट. और सेकंड समझ में आया? पहला कैसा था? इलेक्ट्रॉन में दो मोशन है. पहली मोशन है ऑर्बिटल मोशन. What is orbital motion? When electron revolve around the nucleus, it is orbital motion. Or due to orbital motion, electron creates its own magnetic field, and it is called as orbital magnetic field. Orbital motion of electron creates its own magnetic field, and it is called as orbital magnetic field or orbital magnetic movement. Second motion of electron, it is called as spin motion of electron. Spin है ना, क्या होना? अपने एक्सिस में ही घूमना. ओके, दैट इज दिस इज इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन क्या घूम रहा है? ओन एक्सिस में घूम रहा है. ऐसा घर घूम रहा है, यहीं पे घूम रहा है. देखो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. तो जो इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस में घूमता है उसे बोलते हैं स्पिन. और ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हैव negative charge, and it also creates its own magnetic field, and due to spin motion of electron have spin magnetic movement. देखो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन में दो मोशन है.
पहली मोशन थी ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और जब चार्ज स्पीसीज मोशन में आती है वो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करती है। तो यहाँ पे दो टाइप की मोशन थी, पहली थी ऑर्बिटल मोशन, सेकंड थी स्पिन मोशन। ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट यानी इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, एंड सेकंड इज spin motion of electron. Due to spin motion of electron, spin means when electron rotate around its own axis, rotation of electron. Due to rotation of electron, electron क्या कर रहा है, rotate हो रहा है ऐसा, तो due to rotation of electron it is called as spin motion, and due to spin motion of electron it creates spin magnetic moment. यानी इलेक्ट्रॉन दो टाइप की मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्म कर रहा है, पहला है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और दूसरा है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। मगर आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल के लोग कितने होते हैं, 5 लोग होते हैं। डी ऑर्बिटल के लोग कितने होते हैं, 5 लोग। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या दिखाएगा, दो टाइप की मोशन, एक दिखाएगा ऑर्बिटल मोशन और एक दिखाएगा स्पिन मोशन। मगर एक मेटल यानी ट्रांजिशन मेटल सीख रहे हैं अपन, एक मेटल अगर बॉन्ड फॉर्म कर लेता है कोई भी दूसरे एलिमेंट के साथ, लिगेंड के साथ, तो ड्यू टू लिगेंड द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो ऑर्बिटल मोशन थी इलेक्ट्रॉन की, ये क्या हो जाती है, क्वेंच। क्या होता है, क्वेंच होता है। यानी एक्चुअली मैग्नेटिज्म occur due to two types of motion. First is orbital magnetic motion and second is spin magnetic motion, and collectively it is called as, combinedly it is called as total magnetic movement. But in d block element the orbital motion of electron become quench. क्या हुआ है, quenching हुआ है। quenching यानी there is a shielding of electron by ligand, और ये ligand की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो nucleus around the nucleus it cannot rotate, and due to this orbital motion of electron become quench. So magnetism in d block कौन सी मोशन गई, ऑर्बिटल मोशन से, तो मैग्नेटिज्म जीरो हो गई। ऑर्बिटल मोशन ही नहीं, ऑर्बिटल मोशन ही नहीं तो ऑर्बिटल मोशन नहीं तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, तो दूसरी मोशन कौन सी है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो टोटल मैग्नेटिज्म कहां से आया, तो ओनली स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मैग्नेटिज्म इन डी ब्लॉक एलिमेंट ओनली ड्यू टू स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ड्यू टू स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट electron rotates around its own axis, it is called as spin motion, and the magnetism occur in d block element only due to spin motion of electron, because the orbital motion of electron become quench. Orbital motion of electron become quench. It is called as quenching of orbital motion. All the d block elements shows magnetism only due to spin motion of electron, and the formula to calculate the magnetic moment mu spin only, this is the formula, mu spin only is equal to square root of n plus 2 Bohr's magneton. Okay, here n is number of unpaired electrons. Here n is number of unpaired electrons. So you can easily calculate the magnetic moment in a particular atom and ion of d block element by using this formula. This is the formula to calculate the magnetic moment present in particular d block element. So here mu spin only formula required, so that is known as square root of n plus 2. So let's see the some of the examples of d block element. Suppose there is a scandium 2+, तो कैसे देखेंगे। सबसे पहले देखना पड़ेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज द वैल्यू ऑफ n. सो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1, मगर यहाँ पे कितने प्लस दिए,
दो प्लस तो ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, तो लास्ट शेल कौन थी? फोर्थ। देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले 4s आता, बाद में 3d1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। यहाँ पे ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉन चले गए, ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉन 4s2 3d1। तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आए, तो जहाँ पे एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दो पॉजिटिव है तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? एक, म्हणजे वहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ की वैल्यू क्या है? n इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द म्यू? म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 दैट इज 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट इन स्कैंडियम आयन। ओके, तो ऐसे मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। ये था आपका हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड आयंस। ओके, नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मैग्नीज +5। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, मैग्नीज का है 25, आर्गन 18, 4s2 3d5। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? दो यहाँ से जाएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, ये इसमें से दो पांच इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ऐसे नहीं, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे। ये फोर्थ शेल है, ये थर्ड शेल है। तो सबसे पहले लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो चले गए, 0 हो गया। 2 चले गए, आपको निकालना था 5 में से 2 रह गए, 3 रह गए। तो 5 में से कितने रह गए? 3 गए, तो रह गए 2। ओके, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? आपके पास है 2 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? n प्लस 2। सो n इज 2 प्लस 2, यानी कितना हो गया? 2 प्लस 2 4 into 2 square root of 8। इट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Mn प्लस 5। ओके, इसके बाद देखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट इन Mn प्लस 7। देखो Mn 25, आर्गन 4s2 3d5, वही हो गया। लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? कितने चार्ज है +7, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। पहले 2 ये जाएंगे, 2 और 5 7, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0 इलेक्ट्रॉन, यानी n इज इक्वल टू 0, और n इज इक्वल टू 0 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 2 यानी 0। मींस दिस इज द डायमैग्नेटिक स्पेसिस, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझे? आप निकेल का भी निकाल सकते हो, निकेल 2 प्लस 28 एटॉमिक नंबर है, आर्गन 18 चले गए, उसके बाद आता है 4s2, उसके बाद आता है 4s2 यानी 20, और इसके बाद बचे 8। डी की कैपेसिटी 10 है, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। आप देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको? 2 प्लस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? 4s से जाएंगे, क्योंकि फोर्थ शेल है, उसके 0 हो गए। डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8। कैसे इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको क्या है निकालना है? n की वैल्यू निकालना है। n यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अकेले इलेक्ट्रॉन। ये तो पेयर्ड है, ये चले गए, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। यहाँ पे अनपेयर्ड यानी 1 और 1 2। n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। कैसे निकाली? क्योंकि ये पेयर है, आपको निकालना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सिंगल है, सिंगल। कितने सिंगल है? 2। n की वैल्यू हो गई 2, आपको वैल्यू आ जाएंगी 2 प्लस 2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये था आपका निकेल 2 प्लस का मैग्नेटिक मूवमेंट। यू कैन इजीली कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट बाय यूजिंग स्पिन ओनली फॉर्मूला, म्यू स्पिन ओनली। व्हाई म्यू स्पिन ओनली यूज्ड फॉर द calculation of magnetic movement of d block element? Because there are actually 2 types of magnetic movement, orbital and spin, but orbital magnetic movement become quench, so there is only spin only formula required for the calculation of d block element. Okay, so this is the magnetic properties of d block element. Okay, so आज के दिन इतना ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।